Thank you, sir. You are appearing for the UP PCS, is it? Yes, sir. Okay. And your option for interview, which language have you given? English or Hindi? English and Hindi both. I'm comfortable with both. Okay, but have you mentioned English out there? Sir, it was neither given option for that. There was no option this. Okay, fine. And as I noticed, are you working somewhere at the moment? No, sir. No. So you're preparing for this Yes. service. Okay. You have been writing UPSC also and this also? I guess I have given 3 attempts, but I could not clear prelims. Okay. Yes. Okay. Very nice. And geography and sociology you studied? Yes, sir, in graduation. Graduate. Yes. But now there is no optional in No, sir. this. Okay. This is a good pattern, not having an optional. You agree? Sir, I think it is a good pattern because as we are preparing for UP services, so I think there should be a specific subject regarding UP, and the candidate appearing should have special knowledge for UP and the related area. So I think it is a good step taken by them. And the optional, removing optional is a good idea. So I think the decision taken was to give fair field to all the candidates appearing, whether optional or not. So I think it is a good option. Okay. Then I find it very interesting that you are fond of reading also. Yes, sir. Reading is secondary hobby, but I like meditation more than reading. You like meditation more? Yes, sir. Okay. तो ये mindfulness वाला करती हैं आप? Yes, sir. Vipassana. Vipassana? Yes. So can you tell us something about Vipassana meditation? Yes, क्या I होता है? have done courses also. 2 times I went there. So Vipassana is a technique of mindfulness whereby we are taught how to observe sensations of our body and not react to them. Yes, sir. It is a 10-day course where we have to follow certain guidelines and follow the rules there and practice Vipassana. So after 10-day course now you practice Vipassana daily? Yes, sir. I practice for 1 hour daily. Where are daily? That's very good. You get any benefits? You feel any Yes, sir. benefits? There are a lot of benefits that I want to mention. Like first, I would like to say that more focus. I have got more focus in studies. Second, I would like to say is better decision making capacities. And third is like better focus and concentration and stress, anxiety कम होती है उससे. अच्छा. Yes. You feel more calm? Yes. Okay. Peaceful? Yes. That's very nice. So ये Vipassana तो Buddhist उससे है ना? Yes, sir. Buddhism. Right. Good. I think this is a good thing to do. These days meditation is so much of stress and anxiety is there. Yes, sir. Yeah. और secondly आपने reading लिखा है? Yes, sir. And fiction. Fiction, So what do you read? Novels, sir, especially novels. बताइए any two favorite novel. अभी recently जो पढ़ी हो. yes, sir, Dan Brown की द विंची कोड पढ़ी है. वो I like. और उससे पहले इन्फर्नो पढ़ी थी और लॉस्ट सिम्बल्स डैन ब्राउन की हैं. Dan Brown is a favorite author? Yes, sir. English novels लिखते हैं स्पेशली. तो दा विंची कोड में क्या अच्छा लगा? सर उसमें जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में जो कंट्रोवर्सी है कि वो कैसे उनका बर्थ हुआ था उसके बारे में है. और उसमें एक मर्डर होता है, उस पर फिर वो कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उनको धीरे धीरे चीज़ें पता चलती हैं, फिर वो जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में पता चलता है कैसे जो थ्योरीज प्रिवेल करती हैं बाइबल में वो सच है या नहीं. अच्छा. और बाकी और कोई ऑथर में बताइए जो सिडनी शेल्डन करके एक ऑथर है, उनकी भी पढ़ी थी बट अभी इतना याद नहीं है, उनका पहले पढ़ी. तो बेसिकली आपको ये वाले जो बेस्ट सेलर्स वाली होती है वो पसंद है, मैंने देखा. थ्रिलर्स वाली. यस सर, थ्रिलर नॉवेल्स. अच्छा. ओके, दैट्स नाइस. पूजा यस. अभी क्रिश्चियनिटी या क्राइस्ट चर्च के बारे में आप जिक्र कर रहे थे. क्रिश्चियनिटी सर, सॉरी सर. क्राइस्ट चर्च का बर्थ कैसे होता है? यस सर, यस सर, यस सर. तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जी. जेरूसलम में क्राइस्ट चर्च का क्या सिग्निफिकेंस है और जेरूसलम में एक्चुअली तीनों यस ज्यूज और उनका इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी Yes. तीनों का काफी वो relate झगड़ा है और इश्यूज हैं और वगैरह. इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर जेरूसलम एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज तीनों अपने एंसेस्टर्स या कह दें कि पैगंबर जिनको वो मानते हैं उनकी रूट्स रिलेट करते हैं. ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट का जब पैदा हुए थे तो उन्होंने कुछ टाइम जेरूसलम में भी बिताया था, और ज्यूज के जो पैगंबर थे, सर नाम नहीं याद है मुझे भी, उनका भी जब लास्ट डेज थे वो उन्होंने जेरूसलम में बिताए थे. और इस्लाम में ही माना जाता है कि जो मोहम्मद पैगंबर थे उनके भी कुछ मतलब एंसेस्टर्स रिलेट करते हैं वहाँ से. नहीं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर. तो तीनों आपने बताया, दोनों बड़ा वेग है तीनों. खैर एनीवे, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि वहाँ पे क्या है असली
जो एरिया है 35 एकड़ का या जो भी Yes, है sir. वो असली कोना समस्या की गुलजड़ है। समस्या की गुलजड़ वही है। अब उसमें कह रहा है कि था कोई घोड़े से स्वर्ग गए थे, कोई हाँ। उनका क्रूसिफिक्शन हुआ था और वो टेम्पल वगैरह जो भी है उसको थोड़ा Temple सा Mount. दूसरा मैं सोशियोलॉजी आपने पढ़ी है। जी सर। अभी मैं देख रहा था कि रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के हड़ताल चल रही है कल से, ट्रकर्स का, बस का, इसका उसका। वो इसलिए हड़ताल चल रही है कि उसमें जो ड्राइवर्स एक्सीडेंट करने के लिए भाग जाते थे उनका इन्हांस्ड पनिशमेंट, हिट एंड रन Hit and run. ट्रक के केसेस में इन्हांस्ड पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि जो पनिशमेंट होता है या होना चाहिए वो रिफॉर्मेटिव होना चाहिए या इन्हांस पनिशमेंट करके वो रिफॉर्मेटिव का उल्टा वो क्या कहिए उसको जरा उसको डर ऐसा आदमी में बैठ जाना चाहिए कि भाई इसको करने के लिए अगर हम इस तरह का अपराध करते हैं तो इसमें पनिशमेंट ज़्यादा है। The deterrent. डिटरेंस या रिफॉर्मेटिव? सर मेरे अकॉर्डिंग पनिशमेंट रिफॉर्मेटिव होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान ने अगर कोई गलती करी है तो उसको आप डरा के वो गलती उससे दूर नहीं कर सकते, या ऐसा कोई गारंटी नहीं होती कि पनिशमेंट अगर आप उसे दे रहे हैं तो वो दोबारा नहीं करेगा, या हिट एंड रन के केसेस दोबारा नहीं होंगे, या वो फिर से वो गलती नहीं करेगा। तो मुझे लगता है ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे वो रिफॉर्म हो सके या उसकी मेंटालिटी है वो बदल सके। तो आपका मतलब ये हुआ कि जो ये आईपीसी की नया वो आया है भारत न्याय संहिता, सीआरपीसी का जो नया आया है या का जो आया है, Yes. तो उसमें तो कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें कि पनिशमेंट को इन्हांस किया यस गया सर, है, इसमें है कई ऐसे प्रोविजंस। है ना? जी सर। तो आप जो आप कह रही हैं और जो इसमें प्रोविजन किए गए हैं तो वो तो कंट्राडिक्शन हो गया। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ रिफॉर्मेटिव ही होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग रिफॉर्मेटिव भी एक स्टेप हो सकता है पनिशमेंट देने का। मतलब जो आईपीसी और सीआरपीसी में जो अभी न्यू रूल्स आए हैं जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, उसमें मुझे लगता है कि हाँ वो सही है, लेकिन एक स्टेप हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट आप करिए इन द फर्स्ट ऑफेंडर्स केस Yes. या इन द माइनर ऑफेंसेस, Yes, वो yes. रिफॉर्मेटिव ही है बेसिकली। यस सर, लेकिन जो सीरियस क्राइम्स है उसमें तो सर रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट्स नहीं होनी चाहिए। लाइक रेप और मर्डर में आप आप रिफॉर्मेटिव दोनों बातें कर रहे हैं। ये बताइए कि कोई ऐसी चीज बताइए जो आपके हिसाब से अच्छा हुआ हो, ये जो नई आईपीसी आई है। मैं अभी आईपीसी पे ही भारतीय न्याय संहिता पे ही फोकस कर रहा हूँ कि आप क्या समझती हैं, क्या चीजें अच्छी हुई हैं आपके हिसाब से और क्या चीजें अच्छी नहीं हुई हैं? सर मेरे अकॉर्डिंग आईपीसी में जो भी क्रूअलिटी को डिफाइन किया गया है कि जो केसेस होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, जो क्रूएलिटी वर्ड को डिफाइन किया गया है उसमें ये मेंशन किया गया है कि वुमेन के अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हैरेसमेंट होता है हस्बैंड से या उनकी फैमिली की तरफ से, तो क्या क्या पनिशमेंट होगी, उसमें क्रूएलिटी वर्ड को डिफाइन किया गया है। तो मुझे लगता है इससे स्कोप ज़्यादा अच्छा बेहतर बनेगा मतलब कोई भी केस होगा तो उसके रिगार्डिंग। एक और क्या है? सर दूसरा भी याद नहीं आता है। तो काफी कंट्रोवर्सी हुई, काफी इसमें चर्चा ये सर हुई। एक कंट्रोवर्सी का इशू ये था कि जी सर काफी चर्चा हुई। तो आपको दूसरा ये कि इसी से आप क्या समझते, आज उनका स्टेटमेंट भी है सीजेआई का सेम सेक्स मैरिज के बारे में। यस सेम सेक्स मैरिज इज लीगल इन इंडिया? नो सर, इट इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। सेम सेक्स मैरिज इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। एशियन कंट्री में कहाँ पे सेम सेक्स? सर अभी रिसेंटली नेपाल ने लीगलाइज करी है, उससे पहले थाईलैंड में भी है। थाईलैंड इज द लेटेस्ट, यस नेपाल से पहले था। इसके बारे में क्यों जो डिफरिंग या जजमेंट दिया है सीजीआई ने और एक जस्टिस कौल ने, यस सर। क्या उनके पीछे क्या लॉजिक है? सर सीजीआई ने जो जजमेंट दिया है उसमें उन्होंने बोला था कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगल करना सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको कोर्ट के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन एंड में जो फाइनल जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बोला था कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, अगर सेम सेक्स मैरिज को लीगल करना है तो हमें स्पेशल मैरिज एक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, तो इसलिए कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आपका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट कहती है कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें कोई
कोई इंटरफेरेंस करने का कोई वही नहीं बनता है, पॉइंट नहीं बनता है। Yes, sir. क्लैरिटी थोड़ा और चाहिए हमें। Yes. एक आपका सब्जेक्ट था ज्योग्राफी. Yesterday there was a major earthquake in Japan. Japan is also prone to tsunami. Yes. What's the difference between earthquake and tsunami? सर अर्थक्वेक इज द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स. जो अर्थ का सरफेस है वो कई सारी प्लेट्स से मिलके बना है, तो जब उसमें कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होता है प्लेट्स में तो उससे अर्थक्वेक आता है. सुनामी जब अर्थक्वेक आता है तो उससे रिजल्टेंट जो कुछ फैक्टर्स है उसकी वजह से सुनामी आती है. Is this something to do with collision versus subduction or something? यस सर, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट द मोमेंट. अच्छा, ओके. सेकेंड थिंग इज जो आपने एक रिसेंटली देयर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज गोइंग ऑन, बिहार ने इंट्रोड्यूस भी कर दिया है. व्हाट इज योर व्यू अबाउट कास्ट सेंसस? Yes, my view about caste census is that caste has been a controversy in India since ancient times, and we are also witnessing many atrocities regarding caste. So I think जो बिहार का डिसीजन था कास्ट सेंसस का, वो कुछ ऐसा नया उसमें नहीं आया है. जो डाटा उन्होंने पब्लिश किया है वो ऑलरेडी सेंसस में आ चुका था, तो वो तो एक शायद पॉलिटिकल मूव है उनका. तो मुझे लगता है कास्ट सेंसस को सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव की तरह नहीं देखना चाहिए. अगर कुछ बेनिफिट्स या वेलफेयर स्कीम्स उसके रिगार्डिंग आप ला रहे हैं तो वो बेटर होगा. नहीं, बट रिजर्वेशन एंड मंडल कमीशन एंड ऑल आवर स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन. सो हाउ इज इट दिस कास्ट सेंसस इज गोइंग टू हेल्प टू आइडेंटिफाई दोज हु आर डाउन ट्रॉडन एंड हु कैन बी हेल्प्ड? सर जो बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है उसमें उन्होंने बताया कि 63% जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो ओबीसी है या तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है. तो मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहेगी. बट एनफ इज नॉट डन फॉर द वेलफेयर ऑफ. सर आई थिंक कि ओबीसी में जो 27% अभी रिजर्वेशन मिल रहा है उसमें मैक्सिमम रिजर्वेशन क्रीमी लेयर को ही मिल जा रहा है. तो जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है उन तक वो शायद अपॉर्चुनिटी नहीं पहुँच रही है. बट हाउ विल यू इंश्योर दैट? बिकॉज क्रीमी लेयर इज over a period of time they have become. So how is it going to that reservation versus caste census? How it is going to help the reservation policies of the government of India in case if it is to be introduced? So sir, Okay. Now one thing, you belong to Lucknow. yes. There is something which is on 15 January. Some event is scheduled here in Lucknow. Are you aware that Army Day parade? Yes sir, yes sir. What is it about and why it is being done? I'm not aware of that. Okay. What is your view about women empowerment? How can we that 33% reservation has been given, Yes. but it is more in reach. I mean, it's going on for a very long time. Yes. How can you make it impactful and useful? सर वुमेन रिजर्वेशन जो अभी 33% आया है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, मुझे लगता है इसके बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी हैं और कुछ अभी पॉइंट्स हैं जिस पे गवर्नमेंट को और फोकस करना पड़ेगा. सबसे पहला मुझे लगता है कि जो माइंडसेट है, जैसे हमारी सोसाइटी पैट्रियार्की है तो अभी भी वुमेन उतना अलाउ नहीं की जाती हैं घरों से निकलने में. जैसे यूपी में स्पेशली देखा जाता है सरपंच पति का कॉन्सेप्ट कि वो लड़ती तो हैं अपनी सीट्स पे पर काम सारे उनके हस्बैंड्स या मेल मेंबर्स ऑफ फैमिली करते हैं. तो मुझे लगता है जो 33% रिजर्वेशन है इसमें भी शायद ऐसा होने के चांसेस है कि सीट्स उनकी रहेगी बट काम शायद और काम उनके मेल पार्टनर का रहेगा. तो मुझे लगता है एक ये चेंज होना चाहिए. दूसरा मुझे लगता है कि वुमेन को कैसे होगा, मतलब सर अवेयरनेस थोड़ी और बढ़ानी चाहिए. लोग वुमेन्स को स्पेशली ये बताना चाहिए कि उनकी कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है सोसाइटी में जो वो होल्ड कर सकती हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर वो खुद आके सीट्स लड़ती हैं, काम करती हैं तो वो अपना ही नहीं पूरी सोसाइटी, फैमिली, पूरी सोसाइटी का वो कर सकती है. पूजा, आपने मेडिटेशन लिखा हुआ है, तो व्हाई यू हैव चूजन विपस्सना, व्हाई नॉट सुदर्शन क्रिया? सर बिकॉज आई वांटेड बिकॉज मेरी मम्मी करती थी सर ये मेडिटेशन, सो मुझे उनके थ्रू ही हेल्प. डू यू नो अबाउट सुदर्शन क्रिया? No, sir, not aware. You don't know about Sudarshan. Fine.
अच्छा, अब ये बताइए कि एक विशाखा गाइडलाइंस है, Yes. डू यू नो अबाउट इट? Yes. व्हाट इज दैट? सर विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी कि जो वर्क प्लेस पे वुमेन का हरेसमेंट होता है उसके रिगार्डिंग कि वो जैसे किसी भी ऑफिस में पहले एक इंटरनल कमेटी बैठानी पड़ेगी उनको कि जहाँ पे वुमेन्स हो या वुमेन एम्प्लॉयज हो वो पहले वहाँ जाके कंप्लेन कर सके। तो पहले इंटरनली उसकी जांच होगी फिर आगे वो पुलिस के पास जाएगी। ओके। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड क्रिएट किया था, निर्भया फंड, यस सर। वो क्या है? सर वो भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, जो वुमेन से रिलेटेड केसेस आते हैं उसको डील करने के लिए। महिला सुरक्षा Yes. के लिए गवर्नमेंट और पुलिस महिला सुरक्षा के लिए उस फंड को यूज करेगी। फाइन। मुझे दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक आपने लाइन कही थी जब सर ने एक सवाल पूछा था कि कास्ट सिस्टम इज प्रेवलेंट इन इंडिया सिंस एंशिएंट पीरियड। तो ये एंशिएंट पीरियड का क्या मतलब हुआ, कब से, मतलब सर वैदिक पीरियड के टाइम। वैदिक में कास्ट है? सर कास्ट ऐसे नहीं है, मतलब वर्क के बेसिस पे डिवाइड हुआ था नहीं, उसको। तो वर्ण और जाति या वर्ग और जाति का अंतर आपको मालूम है? जैसे वर्ण- वर्ग जाति तीन शब्द होते हैं, वर्ण, कास्ट एंड क्लास। उनका क्लास सर इकोनॉमिक बेसिस पे डिवीजन होता है, कास्ट का सर इकोनॉमिक बेसिस पे डिवीजन नहीं होता वर्ण और जाति में क्या अंतर है? सर। अच्छा, अरे दूसरा सवाल एक सर ने पूछा था महिला सशक्तिकरण के बारे में, तो वुमेन एम्पावरमेंट में तो 33% रिजर्वेशन की बात आई। पिछले साल सरकार ने मानसून सत्र के बाद विशेष सत्र नया संसद भवन जो बना है उसमें बुलाया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। अधिनियम पारित होने के बाद भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की यस सर। किसे कब से लागू किया जाएगा। तो कयास है कि 2024 के चुनाव के बाद होगा, कि 29 के बाद होगा, कि कब होगा, नए परिसीमन के बाद होगा। क्यों तुरंत लागू नहीं किया जा सका इसे? सर क्योंकि जब सेंसस होता है तो डीलिमिटेशन कमीशन बैठती है जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बाउंड्री बनाती है, तो उसमें जितनी महिलाएं आएंगी उनके बेसिस पे उनको फिर रिजर्वेशन मिलेगा। परिसीमन के आधार पर कर देती, क्या समस्या है? यस सर। क्यों उसको रोका? सॉरी सर। अच्छा, एक आपने अपनी हॉबी में लिखा है रीडिंग। यस सर। अभी मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था पल्प लिटरेचर के बारे में, लुगदी साहित्य, और यूजीसी ने ये कहा कि अब विश्वविद्यालयों में जो साहित्य पढ़ाया जाएगा उसमें पल्प लिटरेचर को भी शामिल किया जाएगा और कुछ बड़े नाम उसमें जोड़े गए। ये कंट्रोवर्सी सुनी नहीं सर, आपने? नो। पल्प लिटरेचर और क्या है सभी? अच्छा, वर्दी वाला गुंडा इस टाइप किताबें, उपन्यासकार लिखने वाले कुछ लोगों के नाम जाने हैं? नहीं सर, हिंदी में इतनी नॉवेल्स पढ़ी नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। मुझे आपका बाइंड ठीक था, लेकिन जैसे हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट भी लिया है, थोड़ा कास्ट में आपसे पूछा गया, तो यू डिड नॉट अपीयर टू बी हैविंग इनफ डेप्थ नॉलेज कि वर्ण और जाति में कितना फर्क है क्या नहीं, क्योंकि सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा है, उसमें तो कास्ट सिस्टम आपने पूरा पढ़ा ही होगा। तो ये हो सकता है क्योंकि आजकल जगह जगह टॉपिक चल रही है, दैट दिस डिस्कशन माइट कम अप। इसको और अच्छे से मेरे ख्याल से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी से रिलेटेड ये इशू है पूरा। और बाकी ठीक है, बाकी आपने ओवरऑल रिजनेबली मेरे ख्याल आंसर किए हैं क्वेश्चंस, और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका ठीक था, फ्लुएंसी थी बोलने में, लेकिन कहीं कहीं पर आप थोड़ा सा वो हो जा रही थी, बैक विजिट कर जा रही थी। तो जब लगे कभी ऐसी चीज है तो अपने मोरल को डाउन मत होने दीजिए। कभी कोई क्वेश्चन नहीं भी आंसर हो पा रहा है, रिलेटेड गो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर वापस आ जाइए उसमें। अगर ये थोड़ा जो बिगिनिंग में आपका कॉन्फिडेंस लेवल था, बाद में इंटरव्यू में वे आउट होने लगा, डाउन होने लगा था, उसको मत होने दीजिए, मेंटेन इट एट दैट लेवल। अदरवाइज ठीक है, आपकी प्रेजेंस अच्छी है, आपकी स्माइलिंग फेस है, यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ वेल, दैट ऑल दोस थिंग्स आर पॉजिटिव। और कुछ ऐड करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट्स पे आपकी क्लैरिटी है, दैट इज टू बी इम्प्रूव्ड, बिकॉज ये जो हमने पूछा था जेरूसलम, वो या जो साहब ने पूछा, ये बड़ा जर्नल है और आज से नहीं, पिछले 6 महीनों से ये चल रहा है, और तमाम इस पे लिटरेचर भी है, तमाम उस पे यूट्यूब लिटरेचर है, तो यू हैव टू बी वेरी
अब जैसा आप कह रहे थे कि ट्राई टू ब्रिंग द बोर्ड टू योर स्ट्रेंथ एरियाज, जहाँ पे आप स्ट्रांग हैं उन एरियाज, उस पे अगर आप बोर्ड को लाएंगे तो यू विल गेट योर विमेन इश्यूज काफी लोगों ने आपसे पूछा, वो बीइंग अ वुमन दैट शुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग एरिया, उसको तो पकड़ लेना चाहिए था आपको, डोमिनेट कर देना चाहिए था डिस्कशन उस पे, बट इट वुड हैव गॉन इन योर फेवर. Like your point about Sarpanch Bhatti is, it's a old cliched statement. How much changes have taken place because this 73rd and 74th amendment तो राजीव गांधी जी के टाइम से, उसको तो हो गए 30 साल से ऊपर हो गए, एंड लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन इन गोमती सिंस देन, तो काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं. आजकल सरपंच पति इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह नहीं गए हैं जितने आज से 30 साल पहले थे. वन सेकेंडली सब्जेक्ट मैटर थोड़ा यू कांट, आप ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट, तो आपको सुनामी और अर्थक्वेक का डिफरेंस नहीं पता है. करंट इश्यूज, आप लखनऊ के रहने वाले हो, आर्मी डे परेड इज अ वेरी बिग इवेंट इज टेकिंग प्लेस. देयर हैव बीन लॉट ऑफ चेंजेस हैव टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ दिस. पहले 73rd आर्मी डे परेड तक वो दिल्ली में ही होते थे, अभी 74 तक, 75 पिछली बार बैंगलोर में, इस बार लखनऊ में, उसकी एक सिग्निफिकेंस है. तो ये चीज़ अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में अगर नहीं मालूम होगा तो यू विल फाउंड बॉन्डिंग और आपका अपना कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा. तो मेरा सजेशन ये है कि ये चीज़ें थोड़ा इनके ऊपर आप जोर दीजिए. और जैसे बेथलेहम वर्सेस जेरूशलेम, क्रिश्चियनिटी वर्सेस जुडाइज्म वर्सेस इस्लाम क्यों है इम्पोर्टेंट, व्हाट इज वेलिंग वॉल एंड ऑल दोस थिंग, वो एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि वेल डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है. उसको थोड़ा सा आप जान लीजिए तो अच्छा, क्योंकि वो करंट हमास वर्सेस आईडीएफ भी चल ही रहा है. हाँ, एक्चुअली जो करंट अफेयर्स होते रहते हैं ना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाता है. जैसे इजराइल हमास का चल रहा है इस समय, जेरूसलम है वहाँ, तो वो घूम फिर के कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल आ सकता है. एग्जैक्टली उसमें हमास को ना भी पूछे आपसे, और उसको घुमा के अराउंड दैट इजराइल इशू एंड वहाँ का वो टोपोग्राफी वहाँ के, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, अच्छा रहा आपका इंटरव्यू. और इंटरव्यू का ड्यूरेशन आपके हाथ में नहीं है. इंटरव्यू लेने हो तो घबराना मत कि जैसे 20 मिनट से ज़्यादा हुआ तो घबराने लगे जल्दी ख़त्म हो जाए. वो थोड़ा थोड़ा तुम्हारे अंदर आ रहा था कि हो जाए बस ख़त्म हो चलें, ये नहीं होना चाहिए. आराम से बैठो क्योंकि ये लाइफ टाइम स्टेक है. कॉन्फिडेंस को मेंटेन करिए, मेन आपको मेंटेन करना है. और यू स्टार्टेड ऑफ वेल, पीटर डाउन स्लाइटली, सो मेंटेन दैट कॉन्फिडेंस ऑल थ्रू. एंड इश्यूज को जो अच्छे हो इश्यूज पे, उस पर और डेलिब्रेट करिए, डेप्थ जाइए. थैंक यू.